سے اسٹارٹ کریں کوئی دقت اس کریم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے، جس کے فضل سے، جس کے کرم سے، جس کے رحم سے آج ہم اور آپ اس پاک مجلس اور بزم کے اندر جمع اکٹھا ہو رہے ہیں. یقیناً ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہمیشہ بنا رہے، جاری و ساری رہے، اور اللہ رب العالمین اس فانی دنیا کے اندر اپنی عبادت کی توفیق دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم منکرات سے پرہیز کریں اور جو معروف کام ہے اس میں ہم پیش کریں. آمین رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں، ہفتہ واری درس میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ روز اول سے اسلام کے اوپر اگر تھیسس لکھے جائیں یا اسلام کی شروعات کے اوپر بہت ساری تاریخی کتابیں لکھی گئی، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مشکل امر رہا ہے، آسان نہیں رہا ہے. اس کا عکس آپ دیکھیں تو آج کے دور میں بھی بہت سارے وہ بھائی جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہیں اور انتھک کوشش کر رہے ہیں دائرہ اسلام میں آنے کے لیے، اللہ نے ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام جگہ پہ دل میں یہ ایک کرن، ایک روشنی پیدا کر دیا کہ اسلام صحیح ہے، اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اسلام کا قبول کرنا، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے معاشرے، اپنے سماج سے بھی لڑنا پڑتا ہے. تو یہ ہر دور میں مشکل امر رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں ہم لوگوں کی پیدائش ہو. تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، خاص کر وہ جو صحابہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے اور کہاں ان کی وفات ہوئی، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس ماحول میں ان کی پیدائش ہے، کس ماحول میں جا کر وہ وفات پائے. لیکن ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس کے الٹا ہے، اس کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سے کام کی صورت میں، خدمت کی صورت میں لیتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کیا وجہ ہے قدر نہ کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو بنیادی چیزیں، فنڈامنٹل چیزیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بنا بنایا مل رہا ہے. جیسے ہم گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہمیں بنا بنایا کھانا ملتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کھانا بنا کیسے ہے. لیکن کبھی باریکی کو جان لے تو پتہ چلے گا کہ ہاں کھانا بنتا ہے کتنی کٹھنائی سے. وعلیکم السلام. ہم تو کھا رہے بچپن سے، پہلے کمارے تھے تو ماں کے ہاتھوں کھاتے تھے، شادی شدہ ہو گئے تو بیوی کے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا کھانا بنتا ہے. میرا مقصد، میری مراد یہ ہے کہ جس محنت، مشقت، آس امید سے درس کی جو شروعات ہوئی، اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سے نشر و فراز درمیان میں آئے، اتار چڑھاؤ درمیان میں، جوڑ گھٹاؤ ساری چیزیں ہوئی،
ये बहुत काबिल रश्क बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को आज भी इस तरीके से रखे हुआ है कि उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं है कि अल्लाह जो उनकी खिदमत लेना चाह रहा है, दर हकीकत ये अल्लाह का काम हमें करना है हर समय। तो हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं, तो ये काम क्यों ना हो? और ज़रूरी तो यही है कि कब्र में ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। आपके अमाल क्या है, आपकी नेकियां क्या है, ये चीज़ें हमें कब्र में अज़ाब से महफूज रखेगी। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि हम इसको और परवान चढ़ाने की कोशिश करें। कोशिश हमारे हाथों में है, कामयाबी अल्लाह की। कोई जरूरी नहीं कि हम कोशिश करें और कामयाब हो जाए, नहीं, जरूरी है कि हम कोशिश करें और जरूरी है कि अल्लाह कामयाब हो। कभी अल्लाह नाकाम भी कर देता है, नाकामी में भी कामयाबी छुपी होती है कि अल्लाह ने क्यों नाकाम कर दिया, है ना। जंग ओहद का वाकया और तस्करा गुज़िश्ता कई हफ्ते से चल रहा है, एक ऐसे जंग के बारे में जिसमें मुसलमानों को पता नहीं हासिल हुआ। लेकिन आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलसल जंग ओहद का तस्करा कर रहा है। करने का मकसद क्या है? करने का मकसद ये है कि हम उसकी नाकामी को समझ सके कि आखिर ये पता शिकस्त कैसे है कि नहीं। अभी एक साल पहले जंग के बदर हुई तो मुसलमान जीत गए, 313 की तादाद थी, 1000 पे खाली पड़ गए। क्या वजह थी कि एक जंग जीतने के बाद जंग में नाकामी, और अल्लाह ने खोल खोल कर बयान किया। तो पिछला करीब 4-10 में तस्करा चल लगेंगे औरत का। तो ये नाकामी बहुत बड़ी चीज है, नाकामी बहुत बड़ी चीज है। एक पॉजिटिव इंसान नाकामी को वो कामयाबी से भी ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि जो कामयाब हुआ है उसकी कामयाबी उसे नाकामी का बहुत बड़ा रहता है हर इंसान के साथ। तो मेरी दरखास्त उन लोगों से भी है जो ऑनलाइन है, उन लोगों से भी है जो ऑफलाइन है, कि इस पल को हम यूं ही ना गवाएं। बज़ाहिर हमारी नज़र में छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में बहुत आला वरफा है। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि तुम में से जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। जमात ऐसी होनी चाहिए। क्यों ना उस जमात का हिस्सा बने, जमात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया, क्यों इसका हिस्सा उसका पार्ट बन सकते हैं, है ना। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि इस मशगूल और मसरूफ तरीन दुनिया और जिंदगी में हमारे सारे काम हो रहे हैं सिवाय अल्लाह के काम को छोड़ के। अगर ऐसा होता कि हमारा काम भी छूट जाता, अल्लाह का काम भी छूट जाता, तो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। लेकिन हम, चाहे हमारी अज़दवादी जिंदगी हो, चाहे हमारी खानदानी जिंदगी हो, हम सारे काम कर रहे हैं सिवाय अल्लाह के काम को छोड़ के। और मेरे भाइयों को बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि दौरे हाजिर में दावत और तबलीग के काम को और ज्यादा करने की जरूरत है। ये तो छोटा मोटा काम हो गया, कम दर्जे का हो गया, लेकिन हमें चाहिए कि इस काम को हम और बढ़ाएं, इसको रुकने ना दें। क्योंकि देखिए कि हमारे असलाफ की मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम दीन को आसानी से पहचान लें। अगर हमारे असलाफ भी सुस्ती का मुजाहरा कर देते तो शायद आज हम भी कहीं ना कहीं शिर्क और बिदअत में डूबे हुए होते, कहीं पड़े हुए होते। तो हम इस अहमियत को समझें और समझने के साथ साथ हम कोशिश करें, याद रखें कि वो अल्लामा इकबाल का शेर आता है कि मैं तो अकेला ही गलत जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए काफिला बनता है। तो हमें कभी भी ये एहसास नहीं करना है कि हमारी तादाद कम है, किल्लत में है, अक़लियत में है, कसरत से महरूम है। हम बढ़ते रहे, लेकिन अल्लाह से दुआ के साथ करते रहे। अल्लाह तू ही बढ़ाने वाला है, तू ही देने वाला है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, हमसे ताल्लुकात वाले रिश्तेदार हैं, उनको लेकर आने की कोशिश करें। इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की तो सिर्फ 83 लोग मुसलमान हैं। कभी ना सोचे कि बड़ी मेहनत हमने की लेकिन तादाद नहीं बढ़ रहा। ये मैं नहीं मानता, आप लोग कम हैं, शुरू में ज़्यादा थे, लेकिन कभी भी मैं ऐसा से कमजोरी के शिकार नहीं हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, कितने दिनों से मैं जा रहा हूँ, लगता है मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आसान नहीं है दावत तबलीग करनी। आप नाच गाने का प्रोग्राम कराइए, बगैर दावत के भीड़ हो जाए, बगैर दावत के भीड़ हाउसफुल, आपको जगह बढ़ानी होती। लेकिन दावत तबलीग के बारे में हम जानते हैं कि आप अनथक मेहनत करेंगे। बताए तो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल हुकूमत तबलीग की है। कितने लोग मुसलमान में हदीसों के अंदर आता है 80, अब बाद जगह आता है 83। 950 साल की दावत तबलीग में 83% बस। तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अल्लाह ने नहीं चुना लोगों को, अल्लाह ने उस काबिल नहीं समझा उन लोगों को कि जो मोमिन कहला सकते हैं। 83 लोगों को काबिल समझ, अल्लाह ने दे दिया हिदायत।
तो हम कभी भी ऐसा से कमजोरी के शिकार ना हो। एक वक्त था कि बड़ी भीड़ थी, आज बहुत कम है। नहीं, आप यकीन जाने कि अल्लाह आपको खुश, अल्लाह आपको इस मशगूल और मसरूफ तरीन दौर में आपके लिए वक्त निकलवा, आप निकालने वाले नहीं है वक्त, हम निकालने वाले नहीं है वक्त, अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे रहा है कि हम अपने सारे काम को छोड़ इस काम के लिए बैठे हुए। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और शुक्र के साथ साथ कभी भी कोशिश में कभी नहीं आनी चाहिए, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। सूरह आली इमरान आयत नंबर 164 164 में अल्लाह ने कहा अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा। ये आयत भी 165 हाँ 165 आयत नंबर 165 अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा। क्या अल्लाह ने कहा, क्या बात है कि तुमको जो मुसीबत पहुंची तुम उस जैसे दो चार मुसीबत पहुंचा चुके हो, तकलीफ पहुंचा चुके हो। ये आयत करीमा भी गज़वा उहद के बारे में। हुआ क्या कि जो फतह शिकस्त में तब्दील होने लगी तो ये एक तकलीफ के वाली थी, सहाबा की तकलीफ देता, सहाबा ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया। तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की और अल्लाह ने कहा अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, क्या बात है कि तुमको जो तकलीफ पहुंची है कद असबतुम मिस्लैहा, इस जैसी की तकलीफ तुम उनको पहुंचा चुके हो। यानी बदर में तुमने को तकलीफ दिया कि नहीं दिया, बदर में तुमने तो हरा दिया काफिरों को, आज तुम्हारे ऊपर पहुंची तो क्यों घबरा रहे? तकलीफ तुम्हारे ऊपर पहुंच गई, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? बदर में तुमने उनको शिकस्त दिया, आज तुम शिकस्त के दुहाने पर हो, तो इसको तकलीफ मत समझो। यानी कहने का मकसद ये अल्लाह ताला का कि एक मोमिन की जिंदगी में जो मुसीबत आती है तो मोमिन कभी भी लान तान नहीं कर सकते। होता है आजकल औरतों का अंदर खास कर होता है, क्या बात है कि अल्लाह को बारिश छुट्टी नहीं रही है, मतलब आसमान विच्छेद हो गया है, क्यों? क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या करती है, गुस्से में या उकताहट में वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करती है, तो सही है ना, बारिश छुट्टी नहीं रही है, धूप छुट्टी नहीं रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मुसीबत छुट्टी नहीं रही है, एक जाए रहा दूसरा आ रहा है। ये वो चीजें हैं जो एक बंदा या बंदी को अल्लाह से दूर कर देता है। यहाँ अल्लाह ने कहा ना, क्या हुआ तुमको मुसीबत पहुंचा, तो तुम लगे उकताहट के शिकार। सहाबा को अल्लाह ने कहा, सहाबा को अल्लाह ने कहा कि क्या जरूरत है तुमको इस तरह उकताहट के साथ करने का, इससे पहले तुम दो चार तकलीफें उनको पहुंचा चुके हो। आगे अल्लाह ने कहा कुल तुम, वो कहने लगे अन्ना हाज़िही कहां से आई, सहाबा कहने लगे अन्ना हाज़िही तकलीफ कहां से आई। कुल नबी कह दीजिए वह मिन इंदी अनफुसिकुम, तो तुम्हारी तरफ से जो तकलीफ तुमको पहुंची है इसके जिम्मेदार तुम, ये तुम्हारी तरफ से है। पूछ लो कहां से आ गए, सहाबा को अल्लाह फटकार लगा है कि पूछ रहे हो अन्ना हाज़ा, ये कहां से हो, तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई। ऐ नबी कुल, ऐ नबी कह दीजिए वह मिन इंदी अनफुसिकुम, इस तकलीफ को जो तुमको पहुंची है इसकी जिम्मेदार तुम ही हो, तो तुम्हारी तरफ से पहुंची तकलीफ। इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला की कुदरत, उसका पावर, उसका कंट्रोल हर चीज के ऊपर है। कोई चीज अल्लाह के रेंज से बाहर नहीं, अल्लाह की पकड़ से बाहर कोई चीज नहीं। तो अल्लाह ताला ने गज़वा उहद के मौके पर सहाबा को तसल्ली देते हुए कहा क्या वो तकलीफ पहुंच गई, इसमें हमारे और आपके भी दर्स है। वो बात मैंने गुज़िश्ता हफ्ते में कही थी, सबसे भी कह रहा हूँ कि क्या होता है कि हमारी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम तो सुन्नत पे चलते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, सबका खैरात करते हैं, हमें तकलीफ क्यों होती है, हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है, हमारे घर में इत्मीनान क्यों नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है, इतनी बीमारियां हमारे घर में क्यों है, इतनी परेशानियां हमारे घर में क्यों, दिक्कत हमारे साथ क्यों है। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, देखो बना नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं करता, उतना ज़्यादा अमल भी नहीं करता, लेकिन कितना खुश रहता है ना। ये सोचते हैं पढ़ ले, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम सोच बैठे हो कि तुम ईमान लाए हो तो तुमको नहीं आजमाएंगे? हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया, तुमको भी आजमाएंगे, और आजमाइश सख्त भी हो सकती है और कम भी हो सकता है, ये अल्लाह तय करेगा, हम और आप तय नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 166 166 के अंदर बयान किया, अल्लाह ने कहा वमा असाबकुम यौमल तकल जमआन फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। क्या अल्लाह ने कहा, बड़ी बेहतरीन आयत देखिए, वमा असाबकुम, जो कुछ तुमको तकलीफ पहुंची, मुसीबत पहुंची, यौमल तकल जमआन, मुठभेड़ वाले दिन, जंग वाले दिन, गज़वा उहद। यौमल तकल जमआन, जमात तस्मीर से जब तुम लोग दोनों जमा हुए, यानी मुखालिफिन और मुवाफिकीन दोनों जो जमा हुए अगेंस्ट पार्टी, फबिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने कहा
کہ مسلمانوں کو جو فتح شکست میں بدل گئی وہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ صحابہ نئے نئے مسلمان تھے، صحابہ کے اندر یہ بات نہ گھس جائے کہ اللہ کے کنٹرول میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، اللہ جتوا سکتا ہے لیکن نہیں جتوا سکتا اس لیے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا نہیں وہ میرا حکم تھا، حکم کا مطلب کیا ہو گیا، میں چاہتا تھا تم ہار جاؤ، سمجھ گئے؟ ورنہ صحابہ نئے نئے مسلمان تھے، فوراً دماغ میں بات چل جاتی ہے ان کی یار یہ کیسے رب کی عبادت کرو جو مجبور ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تو جو چاہیں گے کریں گے، ہم کو دنیا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا بنانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم پیدا کریں گے انسان کو، نیکی کی توفیق دیں گے، جنت میں چلا جائے گا، لیکن ہم نے بہت سی چیزیں انسان کے مزاج پر چھوڑ دیا ہے یہ پرکھنے کے لیے۔ اگر اللہ نے کہا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جاننے کے لیے کہ تم میں سے ظاہری طور پر مومن کون ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بدھیر والے دن، جنگ والے دن جو کچھ تکلیف ان کو پہنچی فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ ظاہری طور پر کون مومن ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو جملہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں مومن ہے الحمدللہ، تو مومن کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ مومن ہے تو تکلیف نہیں ہوگی، آزمائے نہیں جائیں گے، پریشان نہ کیے جائیں گے، وہ سب مسائل سے ہمارا سامنا نہیں ہوگا۔ مومن جو ہے جیسے لوہا بھٹی سے تپنے کے بعد جب نکلتا ہے تو کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو ہماری رب کی زندگی دنیا میں ایسی ہے۔ اگر مومن ہے تو آزمائش سے تو ہمیشہ تیار ہے، آزمائش ہی کی بدولت ہمارا ایمان اللہ تک پہنچے گا۔ اگر آزمائے نہیں گئے ہم تو کیسے پتہ چلے گا مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر طور پہ تو سبھی مسلمان ہیں، لیکن کسی کی زندگی میں آزمائش نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ آزمائش اصل میں چیک اپ ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ اب اس کے بعد مثال طور پہ ایک آدمی اور اچھا خاصا مومن ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں اس کی جوانی میں اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ چیک کر رہا ہے دیکھیے کچھ بول رہا ہے کہ نہیں، بہت سے بول دیتے ہیں یار نہیں مانتے خدا کو، کیا کیا کہاں اللہ ہے، میرا بیٹا کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، کسی کچھ کیا نہیں، ہنستے کرتے مر گیا، لوگ بول دیتے ان کے منہ سے بات نکل جاتی، اللہ نے آزمایا تو فیل ہو گیا۔ اور جو مومن ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ ہم سب تیری امانت ہے، تو نے اپنی مرضی سے ہم سب کو بھیجا، مجھے بھی بھیجا، میرے بچے کو بھیجا، اب تیری مرضی ہے کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا تیرے پاس چلے جائے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے نا، بات تو ہو کتنی نہ ہو۔ مومن جو ہوگا وہ اپنے رب کے معاملہ میں ہمیشہ نرم رہے گا، رب کے ہر فیصلے پر ہمیشہ راضی رہے گا۔ اللہ نے یہاں پہ کہا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کو اللہ نے کیسے آزمایا، صحابہ کو فتح کو شکست میں بدل دیا۔ صحابہ جیسی شخصیت اللہ کے رسول کے بعد دوسری شخصیت نہیں، آج تک ایسی شخصیت نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے آپ کو تکلیف پہنچائی مدبیر والے دن تاکہ جان لیں کہ تم میں سے مومن کون ہے۔ اب سوچ لیں کہ ہمارا ایمان، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا اتنی مضبوط اس کی آزمائش ہوتی، اتنی آزمائش مضبوط ہوتی، اور یہ پریکٹیکل میں جانتے ہیں، اب تک لوگ پڑھتے تھے لیکن پریکٹیکل سمجھ میں آنا ہے کہ آزمائش جو ختم نہیں ہوتی کہ انسان کے ساتھ اس طرح کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو مذاق بیان نہیں کرتا اور حقیقت بیان کرتا ہے۔ ارے بھائی کیا بولے یہ مسئلے سے ریلیٹڈ انسان کا خراب ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان بہت ہے، اور اللہ اسی حساب سے آزما رہا ہے، اسی حساب سے اس کو آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، دھوکے کا سارے سامان ہے، دنیا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے ہمارے نیک بندے یہیں پر اپنی تکلیف سہ لے، اس کا جو مر کر آئے تو سیدھے لے، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ تیار رہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا، ہمیں ہر طرح کی آزمائش پر ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا بڑا گھٹنا کیسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیسے ہو گیا، وہ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہے کہ پروردگار عالم اگر ایسا گھٹنا ہوا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو تجھے ہی راستہ بتائے نکلنے کا، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، میرا اعتماد یقین تیرے ہی اوپر ہے، کافی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی۔ اس مشکل ترین گھڑی میں بھی بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور پہلو بیان کیا، ایک پہلو تو بتایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
हमने इसलिए तुमको मुठभेड़ वाले दिन तकलीफ पहुंचाई ताकि जान ले कि तुम में से जाहिल तौर पर मोमिन कौन है। फिर आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 167 में 167 में वलियालम लदीन नाफकू, और इसलिए भी हमने तुमको मुठभेड़ वाले दिन आजमाया तकलीफ दी ताकि जान ले कि तुम में से मुनाफिक हो। वली यालम लदीना नाफकू, तुम में से मुनाफिक हो, ये भी जानना। किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी पता शिकस्त में बदली तो पता चल जाएगा मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। जानते हैं मुनाफिक? अब्दुल्लाह इब्न उबई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एक मुनाफिक था जो मुसलमान बनकर इस्लाम का रूप धारण करके मुसलमानों की सफों में था। और यही जंग ओहद जब लड़ने के लिए मशवरा किया गया, जिसने कहा कि मदीने के अंदर रहकर जंग लड़ेंगे, लेकिन दीगर साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इससे उनके हौसले बढ़ जाएंगे, हम मदीने में नहीं मदीने से निकल कर लड़ेंगे ताकि उनको लगे कि मुसलमान कमजोर नहीं है, तो अपने घर में घुसे रहेंगे, आप आएंगे तो चुप के मानकर आपसे जीत चलेंगे। ये बहुत ताकतवर गुजर था अब्दुल्लाह इब्न उबई को, जो रईसुल मुनाफिकीन था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि घर में लड़ते तो सामने दुश्मन होते, फिर इधर सहाबा होते और सहाबा के पीछे हम होते, दोनों तरफ से सहाबा गिर जाते। ये उसका मकसद था। अल्लाह ने कहा कि हमने इसलिए तुमको तकलीफ पहुंचाई मुठभेड़ वाले दिन ताकि जान ले कि तुम में से जाहिर तौर पर मोमिन कौन है और जाहिर तौर पे मुनाफिक कौन है। वकीला लहुम, जब इन मुनाफिकों से कहा गया तालो चलो कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर ले, अब इतफाओ या काफिरों को हटाओ। कालू, कहने लगे लौना लम कितालन, अगर हम जान जाते कि जंग लड़नी है लतबाना को तब जरूर अपने पीछे जाते। हम लिल कुफ्र यौम इذ नकरु मिनहुम लिल ईमान, हालांकि उस दिन वो अपनी ईमान से कुफ्र के ज्यादा करीब थे। यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ने? तुम लोगों ने कहा कि लौना लम कितालन, अगर हम जान लेते कि जिहाद हो रही है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, लतबानाकुम, तो हम जरूर हम लड़ाई में हिस्सा लेते। लेकिन इन्होंने हिस्सा लिया था? नहीं लिया। इन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह के नबी मदीने में लड़ेंगे, मदीने में रह के लड़ेंगे। साहबा ने कहा कि नहीं, बहुत से साहबा ने मशवरा किया नहीं, बाहर लड़ेंगे, और के मकाम पे लड़ेंगे या जिस मकाम पर लड़ाई होता है। इसने देखा कि अगर वहां जाते हैं लड़के तो मारे जाएंगे, क्योंकि जाकर तो लड़ना भी तो होगा। जिहाद का मतलब क्या होगा? हम तो जाहिर तौर पे ना मुसलमान है, अंदर से ना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है। अगर हम हामी भर देते हैं तो जंग में जाएंगे तो लड़ना भी होगा, हो सकता है लड़ते लड़के मर भी जाए। तो इन्होंने बाइकाट कर दिया। क्या बोलकर बाइकाट किया? कि हमारा मशवरा नहीं सुना गया। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई ने ये बाइकाट किया कि हमारा मशवरा नहीं सुना गया, और इसने बाइकाट कर दिया, बाइकाट करके चला गया। अब बाइकाट करने के साथ साथ ये ताना भी मारा सहाबा को, जो तीरंदाज माले गनीमत उठाने चले गए और फिर हमला होकर पीछे से खालिद बिन वलीद की सरबराही में तो जो लोग इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, तो उनके घर वालों से कहा कि अगर ये लोग मेरी बात सुन लेते तो बच जाते ना। उन्होंने कहा, किसने? मुनाफिकों ने। अल्लाह ने कहा हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन, उस दिन वो कुफ्र के अकरब ज्यादा करीब थे, मिनहुम लिल ईमान, ईमान वालों से। उस दिन वो ईमान वालों से कुफ्र के ज्यादा करीब थे। यक़ूलूना बि अफ़वाहिहिम, वो अपनी जुबान से जो कुछ कह रहे थे, मा लैसा फी कुलूबिहिम, वो दिल में उनके नहीं था। दिल में कुछ और था, बोल कुछ और रहे। यानी दिल में था बड़ा अच्छा हो तुम मर गए, अच्छा तो मर गया, इतने काहे मरे, पूरा काहे नहीं मर गए। लेकिन जुबान से क्या कह रहे हैं? जुबान से कह रहे हैं कि हम तो मना किए थे, मशवरा दिए थे मदीने में लड़ा जाए, लेकिन जाइए मरने का शौक है, मर गए आप लोग। अल्लाह ने आगे बयान किया वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। वो सोच रहे हैं कि हम जुबान से बोल रहे हैं, दिल में कुछ है तो कोई नहीं जानेगा, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि ये लोग दिल में क्या छुपा रहे हैं और जुबान से क्या बोल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 168 168 में अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम व क़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू। लेकिन उन्होंने क्या कहा? अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम, इन लोगों ने अपने भाइयों से कहा, यानी सहाबा से कहा। क्या कहा? व क़अदू, अब खुद भी बैठे रहे, जंग में नहीं गए। क़अदा यक़अदू में होता है बैठना, खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों से कहा लौ अताऊना, अगर तुम हमारी इताअत करते मा क़ुतिल, तो कत्ल ना किए जाते। उनके घर वालों से कह रहे हैं कि आपके लड़के शहीद हो गए जंग ओहद में, बड़ा दुख हुआ। नहीं तो मेरा बात मान लेता था, नहीं नौबत ही नहीं मन में नहीं किया मेरा बात, मशवरा दिए हम, लेकिन लबर चबर आदमी करके लेके चले गए वहां पे। हम लोग की जुबान की बात हो रही है, कैसे बोलते हैं फिलोसफी करके लिए चले गए। ये लोग कह रहे हैं उन लोगों के शोहदा के घर वालों से कि ये लोग अगर हमारी बात सुन लेते तो आज कत्ल की नौबत, शहादत की नौबत ना आती। अब देखिए अल्लाह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, कुल ए नबी कह दीजिए
फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौता, इनसे कहो कि अपने आप को मौत से हटा दें, तुम सादिक और सच्चे हैं। इनसे कहिए कि जिंदगी भर जिए, कभी मौत इनको ना कहिए। इनसे इतना इनको पता है कि जाते तो ना मरते, नहीं जाते तो मर जाते हैं, तो इनसे नबी कहिए आप कि तुम अपने ऊपर से मौत को अपने ऊपर से हटा दो, दुनिया को छोड़ो, तुम सिर्फ जी के दिखा दो लाइफ टाइम, जब तक दुनिया कायम है तुम जी जाओ, हटा दो अपने ऊपर से मौत को, इतने तुम चतुर चालाक हो, बिल्कुल तुम सादिकी, अगर तुम सच्चे हो। कुरान में ये अंदाज बहुत बहुत से मकामात पर आता है चैलेंज के लिए, ये सब चैलेंजिंग अंदाज है कुरान का। अगर आप सच्चे तो कर दिखाइए। कई जगह अल्लाह ने कहा कि तुम कह रहे हो कि हमने कहा था, मशवरा दिया था, एडवाइस दिया था कि मत जाओ, लोग गए मर गए, नहीं जाते तो बच जाते। तो अल्लाह ने कहा कि नबी उनसे कहो कि अपने आप से मौत को हटा लें अगर ये सच्चे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदों के बारे में, शुहदा के बारे में बयान किया। बोला तहसबन लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, अल्लाह के रास्ते में जो लोग शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, उन्हें तुम मुर्दा गुमान ना करो, मुर्दा ना करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रोजियां दिए जाते हैं। रब के पास कहाँ है? जिंदा है और रोजियां दिए जाते हैं, मतलब रिस्क दिए जाते हैं, खाने पीने के सामान दिए जाते हैं। ये आयत करीमा बहुत डिस्प्यूटेड आयत तो सही है, लेकिन इसमें समझने में बहुत डिस्प्यूट, हालांकि है कुछ बात, कुछ नहीं, कुछ बात नहीं। आप देखिए कि अगर दुनिया के एतबार से जो आर्मी के जो लोग होते हैं, जो डिफेंस लाइन के होते हैं, तो वो जब शहीद हो जाते हैं जंग के दौरान, एक कंट्री का फौज है अपने मुखालिफ फौज से लड़ा तो शहीद हो गया, तो देखिए कि जब उसके लिए शोक सम्मेलन होता है तो कहा जाता है कि वो अमर रहे, है ना। अमर मतलब क्या होता है? ना मरने वाले, जो मर नहीं सकते। हालांकि उनको भी मालूम है कि मर चुका है, वो भी जानते हैं कि डेथ कर चुका है कि नहीं, उसके ताबूत रखे हुए उस फौज की। लेकिन आर्मी वाले जो है उसको अमर इसलिए कहते हैं कि वो शहादत की मौत है, मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है, तो कैसे इसको हम कह दें कि मर गया? नहीं तो आज ना आर्मी कहती है, अल्लाह ने आज 14 साल पहले कह दिया उन लोगों के बारे में जो इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई लड़ते हैं, इस्लाम की तरफ से कुफ्र के खिलाफ। लेकिन इसका एक गलत माना लिया जाता है कि नहीं ये लोग मरते नहीं, मतलब के जिंदा है, इसका एक गलत माना लिया जाता है कि नहीं मरे नहीं, मतलब के मुर्दा को मतलब क्या होता है? एक एजाज दिया जा रहा है कि एक नॉर्मल डेथ है और एक शहादत की मौत है, दोनों फर्क नहीं फर्क। एक आदमी आमतौर पर इंसानी फितरत की वजह से मर गया, एक आदमी जंग में अल्लाह के लिए लड़ते लड़ते मर गया, दोनों में फर्क है। हम लोग घर में सो रहे हैं, हार्ट अटैक से मर गए, वो आदमी शतरत पे लड़ते हुए मर गया, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, दोनों फर्क हो नहीं फर्क। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान करना है चाहा है, जो मकसद है वो है कि शहादत का जज्बा हम लोग सब अपने दिलों में पैदा करें कि अल्लाह मौत तो आनी है, इसमें तो किसी को कोई छुटकारा नहीं, लेकिन अल्लाह जब मौत दे तो शहादत की मौत दे। अब जैसे कुछ मौत होती है अच्छी मौत होती है, जैसे जल कर मरना, डूब कर मरना, इसी तरीके से जुमा के दिन मरना, पेट की कोई बीमारी से मरना, ये सब बेहतरीन मौत है। क्योंकि हम लोग कश्ती से कहीं जा रहे, कश्ती पलट गई, हादसे में मौत हो गई, पानी में डूब के मर गए, ये मुर्दा का हुस्न सुलूक है, अच्छी मौत हुई। घर में है, खाना पका, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जल गए, या शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गए, जल कर मर गए, एक अच्छी मौत है। क्यों अच्छी मौत है? इसकी हिकमत तो समझे। कोई भी नहीं मरना चाह रहा था, लेकिन अचानक उसके साथ एक बड़ा हादसा घटना हो गया, तो अल्लाह ने इस हादसे और घटने को अच्छी मौत की शुमार कर दिया। मेरा बंदा मरना नहीं, तो कुछ तो हराम इस्लाम में। पेट की बीमारी से मरना, जुमा के दिन मर जाना, जुमरात का दिन है, मगरिब के बाद जुमा हो गया, मगरिब पास से लेकर दूसरे दिन जुमा, मगरिब से पहले तक अगर इस दरमियान किसी की डेथ हो जाती है, जुमा के दिन मरना अच्छी मौत है ना। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे जो बयान किया कि वला तहसबन लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, ला तहसबन्ना अमवाता, तुम उनको मुर्दा मत गुमान करो। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ के नाम क्या है, क़ुतिलू, कत्ल यक़्तुलु बना होता है कत्ल होना, मर्डर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। जब किसी का मर्डर हो गया, मर गया, अगर मुर्दा ना कहलाना इतना ही था तो अल्लाह ने क़ुतिलू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता अल्लाह रब्बुल आलमीन, है ना। लेकिन अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अल्लाह के कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहता है कि शहादत की जो मौत होती है बहुत
आला और अरफा मौत, इसका बहुत ऊंचा मकाम है। इसीलिए एक हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी तहज्जुद की नियत करता है, तहज्जुद की नियत करता है कि अल्लाह मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, वो सीधा फजर की नमाज में उठता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तहज्जुद का सवाब पहुंचा देगा। इसी में वो हदीस में वो लफ्ज़ जिक्र है कि एक आदमी शहादत की मौत की तमन्ना करता है, अगर उसकी मौत बिस्तर पे हो जाए तो शहीद के दर्जे ले जाएगा। क्यों? तो ताउम्र ये दुआ करता रहा कि अल्लाह हमें शहादत की मौत दे। जब भी मौत देना, मौत तो बर वक्त है, लेकिन मौत हो, हमें नहीं मालूम कहाँ मौत किस सरजमीन पे होती है, लेकिन जब मौत हो तो अल्लाह शहीद की मौत दे हमें। तो बिस्तर पे उसकी मौत हो जाए तो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दाना मदार नियत के ऊपर है, उसकी नियत थी कि उसकी मौत शहादत की मौत हो, तो अल्लाह उसको सवाब पहुंचाएगा। इसकी मौत शहादत की मौत है। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं अल्लाह ताला में कि आज के ज़माने में जिहाद की नौबत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से हम लोग अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी की दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें भी अगर हम दुआ ना करें शहादत की तो बेकार ना है हमारी ज़िंदगी कि अल्लाह मौत तो बरकेगी, मौत से शहादत की मौत दे। अब इसमें है कि अल्लाह ने आगे कहा बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। इंदा रब्बिही, कहाँ जिंदा है? अपने रब के पास। युर्ज़क़ून, रिज़्क़ रोज़ियाँ दी जाती है। इस सिलसिले में सही मुस्लिम और अबू दाऊद में एक रिवायत आती है कि अल्लाह तबारक व तआला शुहदा की जो रूहें होती हैं, उनकी रूह को सब परिंदे के जौफ या सीने में पैदा कर देता है। एक परिंदा होता है जो ग्रीन कलर का होता है, उस परिंदे की सीने में शुहदा का रूह को फिट कर देता है। अब उस शुहदा उस परिंदे की शक्ल में जन्नत में अपने उड़ते उड़ते रहते हैं, जहाँ मन किया वहाँ चले गए और उसमें जो मन किया खा लिया। ये सही मुस्लिम की रिवायत होती है। तो इस आयत की तर्जुमानी करते हैं, जो रोजियां दिए जाते हैं वो दुनिया की रोजी की तरह नहीं कि 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, फिर 12 बज गया तो लंच का टाइम हो गया, फिर डिनर का टाइम हो, ऐसा नहीं। जो रिवायत के अंदर आता है किस तरीके की रोजियां दी जाती है, तो सही मुस्लिम की रिवायत और अबू दाऊद के अंदर जिक्र है कि एक परिंदे के सीने में अल्लाह तबारक व तआला उन रूह को उनको व्यवस्था कर देता है। तो परिंदे की तरह पूरी जन्नत के भी सैर करते रहते, कभी इस डाले पे कभी इस डाले पे पढ़ना, कभी वहाँ जो कुछ वहाँ के इनामात हैं खाते पीते रहते हैं। ये शहीदों का मकाम हो, मर्तबा है। लेकिन इसका माना बिल्कुल हरगिज़ जो आजकल नेगेटिव माना लिया जाता है इस आयत करीमा की रोशनी में कि ये लोग मुर्दा नहीं है, जिंदा है, मरे नहीं है, मुर्दा नहीं बोल सकते, इस तरह की जो बहुत सी तशद्दुद और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है अल्फाज का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों पर इसका हकायक हमें पता है। तो आर्मी के लोग भी कहते हैं कि मर, लेकिन वो जानते हैं कि मर चुका है, लेकिन वो एक एजाज देते हैं उनको, नहीं इसकी आम मौत नहीं है, आम लोगों की मौत नहीं है, मुल्क के लिए लड़ते लड़ते मरा है। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को आज से 15 साल पहले बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इनके बारे में क्या बयान हो रहा है, उन शुहदा के बारे में जो शहीद हो गए, अल्लाह उनके बारे में बयान कर रहा है। आयत नंबर 170 अल्लाह ने कहा फरहीन बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अपना फजल दे रखा है उससे खुश हो जाते हैं, उससे वो खुश होते हैं। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपना फजल दे रखा है वो उससे क्या होते हैं? खुश होते हैं। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और उन लोगों के बाबत खुश होते हैं जो उनसे अभी तक नहीं मिले हैं और उनके पीछे हैं। और उन लोगों के बाबत क्या है? खुश होते हैं जो अभी तक उनसे नहीं मिले हैं, उनके पीछे हैं। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो किसी किस्म के गमगीन होंगे। दुनिया में ना किसी किस्म का खौफ होगा, आखिरत में ना किसी किस्म का गम होगा। अब ये आयत करीमा के पस मंजर को समझिए, जिनके बारे में यहाँ बयान हो रहा है फरहीन बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, जो कुछ अल्लाह ने अपना फजल उनको दे रखा है उससे खुश होते हैं। कौन लोग हैं? हकीकत में ये आयत करीमा शुहदाए ओहद के बारे में नाज़िल हुई, जो जंग ओहद में शहीद हुए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि शुहदाए ओहद ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हकीकत में जो तूने बयान किया नबी की जुबानी, हमें वो चीज़ें मिल रही, हम जो इस्लाम कबूल किए, तुझ पर ईमान लाए, तेरे नबी पर ईमान लाए, तेरे लिए हमने जंगें लड़ी, जंग ओहद में शिरकत की और शहीद हो गए, तो जो चीज़ें तूने वादा कर रखा तो चीज़ें हमें मिल रही। लेकिन ए अल्लाह जो हमारे पीछे हैं
उन तक कैसे ये बात पहुंचाई जाए कि अल्लाह का कलाम झूठा नहीं है, नबी का फरमान झूठा नहीं। दरखास्त किया इन लोगों ने, शुहदाए उहद ने ये दरखास्त किया कि अल्लाह उन लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा को नाज़िल किया, यही शान नुज़ूल है। इस आयत को अल्लाह ने नाज़िल कर दिया। अब ये आयत बाद के सहाबा को मिली, हम लोगों को मिल रही है, आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, जो कुछ अल्लाह ने उनको जन्नत के तरफ फज़ल दे रखा, उसे बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद वो यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, और वो उन लोगों के बाबत भी खुश होते हैं जिनसे अभी वो मुलाकात नहीं कर पाए, वो जिंदा है दुनिया में, समझ गए, अभी वो दुनिया में, वो मरे नहीं अभी, उनके बाबत भी खुश हो रहे हैं कि वो भी शहीद हो जाते और आते तो हमारे साथ नहीं जन्नत में रहते। उनके बाबत भी खुश हो रहे हैं। लम यलहक़ू बिहिम, जिनसे अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। और क्या है, मिन खल्फ़े, खल्फ़ में होता है पीछे, उसी को कहा जाता है मुखालिफत, उर्दू में तर्जुमा खल्फ़ से मुखालिफत आता है। तो जो अभी उनके पीछे है, यानी दुनिया में अभी आए नहीं, हम तो पहले पहुंच गए बहुत वाले शहीद होकर, जो अभी दुनिया में आए पीछे रहे ना, जन्नत में गए नहीं, उनकी बाबत वो खुश हो रहे हैं। आगे अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी किस्म का खौफ होगा ना गम। तो अल्लाह ने शुहदाए उहद की दरखास्त पर ये आयतें करीमा नाज़िल होने के बाद सहाबा की ईमान और मजबूत हो गया। जहाँ हमसे पहले जो शहीद होकर गए वो जन्नत के अंदर है, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, जिब्रील लेके चले आए, तब उनके अंदर एतमाद, कॉन्फिडेंस बढ़ कि नहीं। जैसे आज ही एक स्टडी हम कर रहे थे, लफ्ज़ आया गैर मुस्लिम भाई का था कि मान ले अगर मुसलमान मर गए, हम मरने के बाद अल्लाह से जो बात थी झूठा निकल गया, तो ये रोक पे खड़े करने वाली चीज थी। तो ऐसे गुमराह किया जाता है कि जिंदगी भर मुसलमान भरोसा किया, उम्र किया, हज किया, ज़कात किया, रोजा रखा, नमाज पढ़ा, लेकिन जब मर रहा है पता चला कि ये दिन झूठा है। उसका यही बोलने का मकसद है कि ये दिन झूठा है, झूठे दिन पर जिंदगी गुजारनी है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये भी एक तरह की आजमाइश है हमारे ईमान की। इस तरह की चीजें आएंगी ताकि हमको सस्पेंशन में डाल दें, जाके हम गलत नहीं चलेंगे, नहीं सोचना चाहिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किताब ऐसी कि शक शुबा गुंजाइश नहीं। दुनिया की सबसे सच्ची करी किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सबसे हकीकत वाली किताब कोई है, कुरान है। यही तो ईमान है कि जो कुरान पढ़ लेंगे दुनिया कोई भी टॉपिक लेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी टॉपिक लेके चलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो लफ्ज़ था उससे एक हैबत ताज़ी होगी। क्यों? क्योंकि हम जन्नत चाहते हैं, हर हाल में हमें जन्नत चाहिए इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 171 171 में बयान किया, यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन, और जो भी जन्नत के अंदर नेमत और फजल अल्लाह की तरफ से मिल रहा है उससे खुश होते हैं उससे। तो अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनों के अज्र को जाय नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। याद रखिए कि जो भी नेकियां हम करेंगे शायद हम भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलेगा। हर चीज नोट हो रही है, चाहे हमारी नेकी हो चाहे हमारे गुनाह हो, हर चीज अल्लाह के महफूज फाइलों में है। और मरने के बाद अल्लाह ताला हर चीज खोल खोल के हमारे सामने बयान कर देगा। मोमिन का जो अजर है, जो भी नेकियां हम कर रहे हैं, किसी को पानी क्यों न पिला दे, किसी को खाना क्यों न खिला दे, किसी की मदद क्यों न कर दे, वो सब अल्लाह के यहाँ महफूज है नेकी की शक्ल में। तो अल्लाह ताला हमें उससे बढ़ चढ़कर बढ़ा चढ़ाकर आखिरत वाले दिन हमें इंशाअल्लाह ताला अता करेगा। दर्स का इख्तिताम हुआ, यहीं तक दर्स रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद कोई सवाल है तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। इमाम साहब जंग अस्सलाम वालेकुम। तो दर्स हो आपको बेहतर बात करेंगे और उससे सबकी सच नाम मत उसको डिलीवर कर सकते हैं। बोलिए। हाँ, जंग उहद के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उबई जो थे मुनाफिक, तो उनका फिर मतलब राज लोगों के सामने आ गया कि हाँ ये मुनाफिकों का सरदार है। देखिए अल्लाह ताला ने, सवाल ये है कि जंग उहद के बाद जो रईसुल मुनाफिकीन का अब्दुल्ला बिन उबई जो उसके हवारी थे, उसकी जो बात मानते थे, तो क्या ये राज अफशा हुआ कि ये मुनाफिक हैं? देखिए ये राज सब पर अफशा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत टॉप सीक्रेट रखने वाले एक सहाबी थे हुज़ैफा बिन यमान, तो ये मुनाफिकी की नहीं, इतनी खुफिया बातें की, कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, क्या राज है इस्लाम का, जो जंग लड़ने जाने क्या प्लानिंग है, एक अंदरूनी बात है, वो उनके अलावा कोई नहीं जानता।
यहाँ तक के ये राज अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम होते थे, उमर फारूक नहीं जानते थे। वो कौन थे? हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनको राजदार नबी कहा जाता है। हुज़ैफा बिन यमान को पता था कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है, उनके अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी को बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को बताया। अब क्यों नहीं इसको अफशा किया गया? वो सिचुएशन सामने नहीं होगा, करने से हो सकता आफत का कल्याण हो जाता। क्योंकि मान लीजिए हम ही लोग यहाँ बैठे हुए, हमने किसी ने चोरी कर दिया, हम कहेंगे आप चोरी किया तो चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। अब देखे हैं बोले हैं, कहाँ सबूत दिखाइए, कहाँ सबूत लाएंगे, है कि नहीं? सिचुएशन ऐसा था। हुज़ैफा बिन यमान को पता था कौन कौन मुनाफिक है, तो जानते थे। इसीलिए रिवायतों के अंदर आता है जब भी कोई इंतकाल करता था, जनाजे की नमाज की बात होती थी तो सारे लोग सब में रहते थे, उमर फारूक हुज़ैफा को तलाश करते थे कहाँ है, कि मेरे को हुज़ैफा को पता है कि जो मरने वाला है मुसलमान है वो मोमिन है, मुनाफिक है। वो रहते तो सब में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया सकता, ठोस सबूत होनी चाहिए, है ना। एक शक होता है कि दोनों बहुत फर्क होता है, लेकिन वो सब में रहते थे और उस तरह का काम में देखते थे हुज़ैफा कहाँ है कि नहीं, तो उनको पता था, उसमें नमाज को पता। यहाँ पे ये ऑनलाइन में सवाल तो बहुत सारे हैं। जिहाद और कुफ्र का लफ्ज़ी माने क्या है? हाँ? जिहाद और कुफ्र का लफ्ज़ी माने क्या है? सवाल ये कि जिहाद और कुफ्र का लफ्ज़ी माना, लफ्ज़ी मतलब कहते हैं कि होता है लोगी माना, होता है मानवी माना। सबसे पहले जिहाद का देखिए, जिहाद अरबी का लफ्ज़ जहादा ये जरूर से आता है कि मतलब कोशिश करना, ट्राई करना। जहादा ये जो माना होता है कोशिश करना, उसी से है जिहाद, लड़ाई करना, जंग लड़ना। लफ्ज़ी माना होता है कोशिश करना। जो सवाल है कि लफ्ज़ माना क्या होता है, तो लफ्ज़ का माना होता है कोशिश करना। उसी से एक उर्दू में लफ्ज़ आता है इज्तिहाद। इज्तिहाद मतलब कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। इज्तिहाद क्या होता है? कुछ मसले बैठ कर कोशिश की जाती है तो तैयार निकालते हैं। एक जिहाद का माना लफ्ज़ी हो गया। कुफ्र का लफ्ज़ी माना होता है इनकार करना। कफर यकफुर माना होता है इनकार करना। मालूम माना होगा उसका, इस्तिलाही माने इसको कहते हैं अल्लाह का इनकार करना। सर जो कोई वबा में जिसकी मौत होती है तो उसको भी क्या शहीद किया जाता है? हाँ, सवाल ये कि वबा में जैसे ताउन की बीमारी फैली थी लेकिन उस तरह के ज़माने में, तो ताऊ बहुत सारे लोगों से होता है पानी। तो इस तरह की कुछ वबा होती है जो हवा में जो क्या है कि बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो वबा कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो कभी कदा जैसे कोरोना वायरस की शक्ल में अभी हम लोग देखा, हम लोगों ने देखा, इससे पहले हम लोग कभी नहीं देखा था। एक दूसरे की तरह इस तरह मामला बहुत ज़्यादा परेशानी और रास्ते सड़क पे ना आना, बीमार ना रहना, इस तरीके से एक बीमारी फैली थी ताउन की बीमारी, इसमें बहुत सारे सहाबा मारे गए। त्वा अलिफ ऐन वाव नून एक बीमारी का नाम है ताउन, उसमें बहुत सारे सहाबा मारे गए। खुद हजरत अमीर मुआविया के भाई हजरत यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। तो एक ताउन की बीमारी अबू बकर सिद्दीक के ज़माने की बीमारी थी, ताउन की बीमारी। तो ये वबा होती है। सवाल ये कि वबा में जो लोग मारे जाएंगे क्या वो भी शहीद दर्जे में आते हैं? तो रिवायत के अंदर आता है कि हाँ, अगर वबा से भी कोई लोग मारे जाए तो शहादत के दर्जे में आते हैं, वो भी उसी मौत में कभी शुमार होता है शहीद के लिए। या सर कोई अगर खुशी से मरते हैं तो उनका क्या जनाजा पढ़ना? सवाल ये कि कोई अगर सुसाइड कर रहे हैं, खुशी करते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? पहली बात। दूसरी बात की क्या उसकी जनाजे में शिरकत कर सकते हैं? तो इसमें तो इस्लाम का बहुत सख्त हुक्म है। अव्वल ये कि खुदकुशी करना हराम, खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा, इसीलिए खुदकुशी ना करें। खुदकुशी क्यों किया जाता है? उकता कर, है ना, किसी चीज़ की परेशानी से उकता कर कोई आदमी अपने आप को मौत के हवाले कर देता है। किसी के ऊपर बहुत कर्ज हो गया, टॉर्चर हो रहा है कर्ज के लिए, सोचता है कि मरी जाएंगे तो बेहतर है, ना रहेंगे ना कोई हमको टॉर्चर करेगा। जबकि अल्लाह ने कहा अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुसीबत नहीं देता। तो ईमान नहीं है हमारे इन चीज़ों पर, इस वजह से हम उसको समझते हैं कि नहीं हमारे से ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है। तो पहले ये कि खुदकुशी हराम, कभी भी एक मोमिन खुदकुशी नहीं कर सकता। अगर मोमिन है तो दुनिया की बड़ी बड़ी परेशानियां झेल लेगा। आप देखिए नबियों के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, पूरे बदन में घाव था, जख्म था, पीप बह जाता था। वो दुआ करते थे रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, अल्लाह की तकलीफ पहुंची है और तू ही रहम करने वाला है। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। तो बहुत से नबियों को आजमाया गया, अंबिया और रसूल को, सहाबा के जिंदगी में आजमाइश है, लेकिन कभी भी ये नहीं सुनने में आया कि किसी सहाबा ने खुदकुशी की।
कभी नहीं, तो खुदकुशी हराम है। अब रहा सवाल जनाजे की नमाज पढ़ने के बारे में, तो इसमें अहले इल्म के दरमियान बहुत सारी बातें, इख्तिलाफ नहीं बात, कौल बहुत सारी हैं। एक कौल ये है कि उस इलाके का कोई इमाम या आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, उसकी जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। जिस जगह का रहने वाला है लड़का, उसके मोहल्ले का कोई शिरकत नहीं करेगा, ना अवाम हो ना खवास हो, मतलब ना इमाम हो मस्जिद का और ना आम पब्लिक। बात अहले इल्म ने कहा है कि इमाम कम से कम दूर रहे, आम पब्लिक शिरकत कर जनाजे में। बात अहले इल्म ने कहा कि उसके जनाजे पढ़ने के बाहर से आने बुलाएंगे और बाहर के लोग आके शिरकत करें, कोई शामिल ना हो। बहरहाल ये अखबार सुनी का आपको अंदाजा लगता है कितनी बड़ी सख्त बात बयान की गई। तो ये खुदकुशी एक हराम शय है और इसकी जनाजे में शिरकत ना की जानी चाहिए। अगर आपका दिल नरम है, आप चाहते हैं तो जाने में क्या इजाजत है, हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या सर एक और सवाल और है, क्या जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ना है? जिहाद के बारे में तो सवाल ये कि क्या जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ना है, तो मैंने तो हम बता दिए जिहाद का मतलब कोशिश करना, ट्राई करना। जिहाद है मतलब कोशिश करना, है ना, सिर्फ लड़ने का नाम जिहाद नहीं। कुरान में बहुत से लफ्ज आए जिहादी के बारे में आए, कोशिश करने के माना क्या है, लड़ने का नाम सिर्फ जिहाद नहीं, समझ गए। अपने आप को बुराई से रोकना भी जिहाद है, अपने आप को फहाशी से रोकना भी जिहाद है। ठीक है, हम रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बुराई का काम ना करें, गुनाह के काम ना करें। तो जिहाद का लफ्ज सिर्फ एक चीज पर मामूल नहीं किया जा सकता, समझा रहे हैं? उसके बहुत सारे माना है, एक माना पर फिर लड़ाई के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे मानों में एक माना है कि लड़ाई नहीं, ये उसका असल मसला है। और जिहाद तो बहुत सारी चीजों का है, गरीबों के लिए कोशिश कर रहा है, जिहाद कर रहे हैं। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि बेवा और मिस्कीन के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है। तिरमिजी की रिवायत है। सर इंजीनियर मिर्जा तारिक जमील नहीं वैसे छोटी मोटी बात नहीं, आप मामूली मिर्जा को थोड़ी हो। इंजीनियर मिर्जा तारिक मसूद तारिक जमील, तीनों का बयान मतलब हमारा मजमूआ करता तो ज़्यादा इसमें, इसके बारे में आप क्या कहना? तीनों का बयान नौजवान जो है क्या बहुत ज्यादा दूर तक से, यहाँ तक कि मतलब दूसरे सहाबा तक पहुँच जाता है इसका अवलोकन सुनने से। आप कभी मतलब फुर्सत में एक आध दो क्लिप सुनते देखिए, आगे नेक्स्ट टाइम उसको दर्श दीजिएगा और आप उसको देखिए। आपका जो सवाल है कि जो लोग अपने नाम लिए जिन्हें भेजा हो या मुफ्ती तारिक मसूद या तारिक क्या है तारिक जमील, हाँ, तीनों के बयान के बारे में पहली बात है कि हम तो तीनों का नहीं सुनते। पहली क्यों नहीं सुनते हैं, कोई दुश्मनी नहीं। हम पहले बाजार खरीदने जाएंगे कि एक तरफ भागा आलू, एक तरफ अच्छा आलू, तो क्या खरीदेंगे? अच्छा आलू खरीदेंगे, भाई को पैसा अच्छा लगाना है, सामान भी अच्छा चाहिए। एक चीज जानते हो, चीज सही नहीं तो जाएगी क्यों कर, तो आप देख लेना सही नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि कैसे पता लगेगा आप अच्छे हैं वो खराब है, उसके लिए इस्लाम का मुताला करना किताबों में, बगैर स्टडी किए हम नहीं समझ सकते। समझा रहे हैं? किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए हमको पहले बेसिक पढ़ना है। हम लोग बेसिक नहीं पढ़ते हैं, सीधा हाई स्कूल में चले गए, क्या हो, हम किसी को पता नहीं लगा रहे वो अच्छा है और हम वो खराब है, हम अच्छे हैं। सवाल ये है कि आम लोग जो सीधे चले जाते हैं उनसे कहा जाए कि अपने बच्चे को हाई स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, 5 साल का बच्चा है और एचएस में नाम लिखवा दीजिए, कहीं लिखवाएंगे कैसे हो जाएगा? तो आप कैसे सुन लिए उसकी कभी, आप कैसे चले? भी हम थोड़ा बहुत सुने हैं, और जब वो स्टार्टिंग में आया तो अहले हदीस का लिबादा पास में आया। सवाल है, मैं सवाल जब वो स्टार्टिंग में आया तो अहले